Hello everyone. So today in this video we will continue our previous topic which is Picard's method of successive approximation. And इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें simultaneous differential equations with initial condition given हो तो हम Picard's method का यूज करके इस टाइप की differential equations को कैसे सॉल्व करेंगे. Simultaneous differential equations with initial conditions. Okay, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बन सकती हैं देखो. Consider two simultaneous differential equation with initial condition dy by dx is equal to f of x, y, z, where y of x naught is equal to y naught and dz by dx is equal to g of x, y, z, where z of x naught is equal to z naught. ठीक है, तो ये हमें टू साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद इनिशियल कंडीशन अगर हमारे पास गिवन है और हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ पिकार्ड्स successive approximation, then how we will solve and how we will deal with these type of equations. ठीक है, तो हमें हमें ये पता है कि ये जो मेथड है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है. तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, nth अप्रोक्सीमेशन चाहिए होता है, जिसका यूज करके हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो द nth approximation, the nth approximation for the given system of equation, nth approximation कैसा, हमें yn मिलेगा यहाँ से, यानी nth approximation for this differential equation and nth approximation for this differential equation. The nth approximation this to the initial value problem suppose this is initial value problem 1. हम साइमल्टेनियसली कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम है इक्वेशंस का जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया. ठीक है, इसका जो nth अप्रोक्सीमेशन होगा इज गिवन बाय yn के लिए हम कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे, nth अप्रोक्सीमेशन फॉर y, तो यहाँ पे होगा y नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट टू x, यहाँ पे लिखना है हमने f ऑफ x y n minus 1 comma z n minus 1 dx. Okay, and as the nth approximation for zn for this differential equation is zn is equal to z naught plus integration from x naught to x g of x y n minus 1 z n minus 1 dx. ठीक है, तो ये है nth approximations for these two differential equations and इनका यूज करके हम approximate solution find कर सकते हैं. ओके, सो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन की हेल्प से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड हमने कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज find the third approximation of the solution find the third approximation of the solution of the equations dy by dx is equal to z, dz by dx is equal to x square y plus z. by Picard's method solve करना है हमें इसको, where y is equal to 1 and z is equal to 1 by 2 when x is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जब x की वैल्यू 0 होगी, y का वैल्यू 1 है, तो हम इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 1 by 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 by 2, z ऑफ 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 z इज 1 by 2. तो ये जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दीज आर टू
differential equations with these initial conditions, and we have to solve it by approximation method and find its third approximation. So कैसे solve करेंगे हम ये question को? Firstly, we will compare these two equations with the standard equation. So compare given initial value problem with dy by dx is equal to f of x, y, z, and dz by dx is equal to g of x, y, z, where f of x naught is equal to, sorry, where y of x naught is equal to y naught and z of x naught is equal to x naught. तो अगर हम ये इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पे इक्वल है. अगर हम ये इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि जो f ऑफ x y z है इसका वैल्यू कितना है z. सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है g ऑफ x y z इज x स्क्वायर y प्लस z है, राइट. एंड जब हम इनिशियल कंडीशंस को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट और यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी x नॉट का वैल्यू 0 है एंड y नॉट का वैल्यू कितना है 1 है. x नॉट कितना है 0, y नॉट कितना है 1. जब हम सेकेंड इनिशियल कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे z ऑफ x नॉट इज इक्वल टू z नॉट, यहाँ पे z ऑफ x नॉट इज इक्वल टू z नॉट. x नॉट तो 0 है तो z नॉट का वैल्यू कितना है 1/2. z नॉट का वैल्यू कितना है 1/2. ठीक है, ये वैल्यूज ये कंडीशंस हमें गिवन है एंड हमें फाइंड करना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन. तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमें फर्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशंस की नीड होती है, तो हम पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए निकालनी है. इसके लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी y1 क्योंकि y अननोन है यहाँ पे, और इसके लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी z1 बिकॉज जो z है वो अननोन है यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम कहाँ से निकालेंगे? अच्छा, पहले हम nth अप्रोक्सीमेशन लिख लें, फिर वहीं से तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे. nth अप्रोक्सीमेशन of the given initial value problem is given by, क्या होता है फॉर्मूला nth अप्रोक्सीमेशन के लिए? yn को हम रिप्रेजेंट करते हैं y नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x, यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x y n माइनस 1 z n माइनस 1, राइट. एंड z के लिए जो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हमारा जो nth अप्रोक्सीमेशन होगा वो होगा z नॉट इज इक्वल टू z नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x g ऑफ x y n minus 1 z n minus 1 dx, right. These are nth approximations. Now we have to find third approximation. थर्ड के लिए हमें फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी ही पड़ेंगी. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमने यूज किया है. No. So suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay. So for first approximation, हमें क्या करना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए? यहाँ पे n को 1 पुट करना है, यहाँ पे भी n को 1 पुट करना है क्योंकि हमें y1 एंड z1 दोनों ही फाइंड करना है. सो फर्स्टली वी विल फाइंड y1. ठीक है, फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो जब हमने n को यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ आएगा y1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा y नॉट प्लस x नॉट टू x. यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट करना है और हमें पता है f ऑफ x y z हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x y z की वैल्यू कितनी है हमें दी गई है, f ऑफ x y z की वैल्यू z.
तो एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन जेड एन माइनस वन क्या होगा? यहाँ पे देखो, अगर z है तो z है आंसर में, अगर यहाँ पे हमने z माइनस वन से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी z की प्लेस पे जेड एन माइनस वन आएगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं ना, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? z ऑफ n माइनस वन dx। ये अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। y नोट हमें कितना दिया गया है? y नोट की वैल्यू है 1, x नोट है 0, z नोट है 1/2। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने n को 1 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ y1 आया, यहाँ y नोट आया, और यहाँ पे क्या आएगा? f ऑफ x। n को जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे y नोट आएगा, ऐसे ही n को जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो z नोट आएगा। पहले ये हमें एक्सप्रेशन लिखना है। देन y नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? y नोट का वैल्यू कितना है? 1 है। x नोट का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x आएगा। अब इसका वैल्यू लिखना है, हमें चाहिए वैल्यू f ऑफ एक्स वाई नोट जेड नोट का। अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड जेड है तो एफ ऑफ एक्स वाई नोट जेड नोट कितना होगा? जेड नोट होगा। जेड को अगर यहाँ जेड है तो यहाँ पे भी जेड है, अगर यहाँ जेड नोट लिख रहे हो तो यहाँ पे जेड नोट आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? जेड नोट डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा y1 इज इक्वल टू 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड नोट? जेड नोट की वैल्यू हमें 1/2 दी गई है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1/2 एक्स, और यहाँ पे हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। जब हमने अपर लिमिट पुट की यहाँ पे तो x ही आएगा। 1 एज इट इज लिखा। यहाँ पे जब हमने अपर लिमिट पुट की तो ये 1/2 इंटू एक्स आएगा, माइनस का साइन डाल के हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, ये 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना बन रहा है? 1 प्लस एक्स बाई टू। तो ये आ रहा है हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y1 की वैल्यू कितनी आई है? 1 प्लस एक्स बाई टू। ऐसे ही हमने z1 फाइंड करना है, तो z1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने n को 1 पुट किया तो यहाँ z1 आएगा, यहाँ z नोट, और यहाँ पे n को 1 पुट कर रहे हैं y नोट आएगा, यहाँ पे z नोट आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा z1 इज इक्वल टू z नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x, यहाँ पे है g ऑफ x, और यहाँ पे y n माइनस वन था, n को हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ y नोट आएगा, यहाँ पे z n माइनस वन था, n को 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे z नोट आएगा। सो z1 इज इक्वल टू z नोट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1/2, x नोट कितना है? 0, एंड g ऑफ, हमें ये पता है g ऑफ एक्स वाई जेड हमें क्या दिया गया है? g ऑफ एक्स वाई जेड इज x क्यूब y प्लस जेड। एक्स क्यूब स्टेटमेंट में क्या लिखा है हमने? मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया ना यहाँ पे। यहाँ पे है एक्स क्यूब वाई प्लस जेड। ओके, यहाँ पे है एक्स क्यूब। हाँ जी, तो हमें वैल्यू निकालनी है g ऑफ एक्स वाई नोट जेड नोट की। तो इस इक्वेशन में जहां जहां y हम y नोट पुट कर देंगे, और जहां जहां z है वहां पे हम z नोट पुट कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा इसका? एक्स क्यूब, और यहाँ पे आएगा y नोट प्लस जेड नोट, राइट। नाउ z1 is equal to 1/2 integration 0 to x cube, and what is the value of y नोट? y नोट तो हमें 1 दिया गया, एंड z नोट कितना दिया गया? 1/2। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इंटीग्रेशन के आउटसाइड इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब dx, एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास आएगा एक्स रेज्ड पर 4/4, और यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 टू x। तो z1 कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 3/8, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे x4 माइनस 0 ही आएगा, जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो z1 का हमारा आंसर आ चुका है 1/2 प्लस 3/8 एक्स रेज्ड पर 4। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर ली है। जो फर्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए ये आ रहा है, सेकंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हमारा z1 ये आ रहा है। दीज आर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा. सो फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम पुट कर देंगे n को 2 किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में. इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था क्या हमारा, n को हम 2 पुट कर रहे हैं. यहाँ पे था y0, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेनी थी हमने x0 to x, और यहाँ पे था f of x, यहाँ पे था yn-1. अगर n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो आप, तो y2-1 1 होगा. यहाँ पे था zn-1, n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, 2-1 1 होगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा dx. एंड हमें f of x y1 z1 की वैल्यू हमें z दी गई है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं f of x y1, z1 की वैल्यू कितनी होगी, z1 होगी. सो y2 इज इक्वल टू y नोट की वैल्यू कितनी दी गई है 1, x नोट की वैल्यू हमें दी गई है 0 टू x आ जाएगा, और ये फंक्शन हमारा कितना आ रहा है z1 dx. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, हमने अभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने z1 की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 1/2 प्लस 3/8 x रेज टू पावर 4, 1/2 प्लस 3/8 इंटू x रेज टू पावर 4, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 1/2x प्लस यहाँ पे कितना होगा 3/8 x रेज टू पावर 5/5, 8 5 40 हो जाएगा, ये 3x रेज टू पावर 5/40, और यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 to x, ये 2 टर्म्स में. ठीक है, और हमें पता है अपर लिमिट पुट करोगे तो x का x ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन डाल के जब लोअर लिमिट पुट करोगे ये 0 हो जाएगा. सो y2 हमारा कितना आ गया है 1 प्लस x/2 प्लस 3x रेज टू पावर 5/40. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कैसे हमने फाइंड करना है. सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए. अब हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड कर रहे थे, तो y2 तो हमने निकाल लिया, z2 फाइंड करना है अब. तो z2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 था क्या हमारा, यहाँ पे था n को 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे था z0, यहाँ पे है x0 to x, और यहाँ पे था g of x y of n-1, y of n-1, n की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, 2-1 1 होगा. यहाँ पे था z of n-1, n की वैल्यू 2 है तो 2-1 1 आएगा. z नोट की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, x नोट की वैल्यू है 0 टू x आ जाएगा यहाँ पे, और ये फंक्शन g ऑफ x y z हमें गिवन है x³ इंटू वाई प्लस जेड. राइट, हमें किसका वैल्यू चाहिए, g ऑफ x y1 z1 का, तो हम x को यहाँ y को y1 z को z1 लिख दे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x³. अगर हमने यहाँ पे y को y1 और z को z1 किया, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा x³ y1 प्लस z1. तो हमें यहाँ पे y1 एंड z1 दोनों की वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यूज हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में फाइंड की है. राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, y1 हमने फाइंड किया था 1 प्लस x/2, y1 की वैल्यू क्या आ रही थी 1 प्लस x/2, एंड z1 हमने फाइंड किया था, z1 की वैल्यू आ रही थी 1/2 प्लस 3/8 x रेज टू पावर 4. ये थी वैल्यू z1 की, इनको हमने ऐड करके लिख दिया. y1 एंड z1 की वैल्यूज पुट की है, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमने. यहाँ पे ये 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2 होगा, यहाँ पे x/2 आएगा, और यहाँ पे अभी तक के लिए हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है. अब x रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे सभी टर्म्स को, यहाँ पे आएगा 3/2 x रेज टू पावर 3, यहाँ पे आएगा x रेज टू पावर 4/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8 x रेज टू पावर 7 dx. x³ को सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो आंसर कितना आएगा 1/2 प्लस इसका आएगा x4/4, 2 पहले ही पड़ा है तो 3/8 हो जाएगा यहाँ पे, एंड x5/5 अपॉन 5 करोगे तो यहाँ 2 पहले ही पड़ा है 10 हो जाएगा. यहाँ पे आएगा x रेज़्ड पर 8/8, तो 3/64 हो जाएगा ये.
और यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 to x, और जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो x का तो x ही रहेगा, लोअर लिमिट पे ये 0 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर बनेगा आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट्स इन दिस एक्सप्रेशन। तो हम यहीं पे रख देते, यही लिख देते हैं कि यही हमारा z2 होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z2? 1/2 प्लस 3/8 x रेज्ड पर 4 plus x 5/10 plus 3 x raised to power 8/64. So this is second approximation. Now we have to find third approximation. So third approximation के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पुट करना है n को 3 in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? n हम 3 पुट कर रहे हैं, y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 to x, यहाँ पे था f of x yn-1, n अगर 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 - 1 is 2, यहाँ पे कितना आएगा? zn-1 होता है, तो n अगर 3 है तो यहाँ पे z2 आएगा। y0 का वैल्यू 1 है, x0 का वैल्यू 0 है, एंड ये फंक्शन f of x y z हमें z दिया गया है, तो f of x y2 z2 कितना होगा? z2 होगा। एंड z2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z2? z2 हमने फाइंड किया है 1/2 3/8 x raised to power 4 plus x raised to power 5/10 plus 3 x raised to power 8/64. This is the value of z2. राइट, ये देखो अभी फाइंड किया था हमने z2, यही लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। y3 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 1/2 के साथ x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा x 5/5, तो यानी 3/8 5 सा 40। इसका होगा x 6/6, 10 पहले ही पड़ा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और इसका क्या होगा? x रेज्ड पर 9 अपॉन 9, 64 मल्टीप्लाई 9, तो ये इससे कैंसिल आउट होके यहाँ पे 3 आएगा। तो लिमिट्स पुट करोगे ना तो यही आएगा, लिमिट्स पुट करके देख लेना, इस एक्सप्रेशन में यही बन जाएगा ये। तो y3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 x प्लस 3/40 x रेज्ड पर 5 प्लस x रेज्ड पर 6/60, एंड 64 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192। ठीक है, सो दिस इज थर्ड अप्रोक्सीमेशन y3। अब हमें निकालना है z3। सो z3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या था? zn, यानी z3 इज इक्वल टू z0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x, यहाँ पे था g ऑफ x ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा? yn-1 लिखते हैं, n3 है तो यहाँ 1, 3 - 1 2 आएगा ना, z2, एंड यहाँ पे आएगा dz। एंड g ऑफ x y z क्या था हमें गिवन? x3, यहाँ पे था y प्लस z, लेकिन y की प्लेस पे हम y2 लिख रहे हैं और z की प्लेस पे z2 लिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है y2 प्लस z2 का, और z0 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1/2 ना, x0 0 है, x3 ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये y2 प्लस z2 का आंसर लिखना है। y2 हमने कितना फाइंड किया था? y2 आ रहा था हमारा 1 प्लस x/2 प्लस y2 का वैल्यू था 3x रेज्ड टू पावर 5 अपॉन 40। दिस इज द वैल्यू ऑफ y2, एंड z2 की हमने वैल्यू फाइंड की थी। z2 की वैल्यू आ रही थी 1/2 प्लस 3x रेज्ड टू पावर 4 अपॉन 8 प्लस x रेज्ड टू पावर 5 अपॉन 10 प्लस 3x रेज्ड टू पावर 8 अपॉन 64 इंटू dx। हमने क्या करना है? यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, और साथ में x3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इससे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/2 x रेज्ड टू पावर 3। अब x से रिलेटेड टर्म तो एक ही है, जब आपने इसको x3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? x4/2। x 5 से रिलेटेड 2 टर्म्स है, इनको तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा। पहले ये लिख ले, x4 से रिलेटेड एक ही टर्म है 3/8, x3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x रेज्ड पर 7 हो जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर ले, इनको सॉल्व करके कितना आता है देखो, 3/40 प्लस 1/10 x रेज्ड पर 5 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया इन दो एक्सप्रेशन से। एलसीएम इसका आएगा 40, 3 + 4
एक्स रेस्ट पर 5 यानी 7/40 है ये। कितना है ये? 7/40 अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हो। और साथ में एक्स रेस्ट पर 5 तो पहले ही पड़ा है, 3 और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7/40 एक्स रेस्ट पर 8 एंड लास्ट टर्म 3/64 एक्स रेस्ट पर 8 पहले ही है, 3 यहाँ से आएगा तो 11 पावर हो जाएगी। बस अब इसका जस्ट इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स पुट करनी है, वही हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा। सो Z3 इज इक्वल टू 1/2। इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स 4/4 आएगा ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स 5/5 आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 एक्स रेस्ट पर 8/8 पहले ही 8 पड़ा है तो यहाँ 64 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स रेस्ट पर 9/9 आएगा, 9 लिखोगे यहाँ पे। सो 40 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 360 होगा। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 3 एक्स रेस्ट पर 12 ओवर, तो हमें 64 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 64 को हमें सॉरी 9 यहाँ पे कितना है हमारा पावर 11 है ना। 64 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 64 को हमें करना है 12 से मल्टीप्लाई। अच्छा पहले ये लिख ले 64 अपॉन अगर 12 आया तो 12 को तो हम 3 से कैंसिल आउट करके यहाँ पे 4 लिख लेंगे, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 256 आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के एक्सप्रेशन में हमें लिमिट पुट करनी है 0 to x, और आपको पता है अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे x ही रहेगा, लोअर लिमिट का 0 आ जाएगा। तो यही हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन का आंसर होगा। तो बस यही तक थर्ड अप्रोक्सीमेशन ही हमने फाइंड कर लिया, तो हमने ये फाइंड कर लिया। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि अगर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी दी गई हो तो उनको पिकार्ड्स मेथड की हेल्प से किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।